Very good, warm, sunny afternoon to all friends from the media. Can you hear me? Yeah. Can you hear me? A very good, warm, sunny afternoon to all friends from the media who are present here. Honorable Minister for Coal, Shri G. Kishan Reddy ji, to set the context of this media interaction and press conference. As you are all aware that the coal sector is the mainstay of the energy mix of this country. Perhaps all of you are aware that almost 72% of our thermal power production is entirely from coal. Assured and dependable supplies of coal through production, its enhancement and efficient evacuation has been a consistent growth story of the sector, powered by a lot of policy initiatives which have been taken by Honorable Prime Minister and this government since 2014. To put the issue in context, of all the core sectors which constitute the definition of infrastructure sectors, coal has shown the highest growth in December 2024 of 5.3% if we compare it to December 2023 out of the 8 core industries which constitute the index of 8 core industries. Various policy reforms, whether it's commercial mining which was introduced in 2020, has been the engine increasingly of enhanced production growth. Both the power and the non-regulated sector, consisting of a shelf of industries which constitute the mainstay of the economy, whether it's sponge iron, textile, cement, have been assured of dependable supplies which have been met in a very timely fashion. In fact, very significantly, despite the constraints on the rail side during the period of the Mahakumbh, all thermal power plants in this country are adequately stocked as we speak. In fact, the last year closing stock at the thermal power plant on 31st March was achieved this year on 24th of January itself, almost 65 days ahead of this time. These figures should indicate to you as to how a whole of the government approach by coal ministry involving multiple stakeholder ministries like railways, power, and of course on the systemic reform side, Ministry of Environment and Forests has resulted in a very, very robust and vibrant ecosystem. इंडिया डेवलपमेंट, देश विकसित होने में कोल सेक्टर एक क्रिटिकल पिलर है। विकसित भारत यात्रा जो 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें कोल मिनिस्ट्री भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं। भारत दुनिया की कोल प्रोडक्शन में दूसरे स्थान में है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिजर्व्स भारत में है और भारत दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर भी है और दुनिया की सबसे बड़ा 2nd लार्जेस्ट कोल माइन छत्तीसगढ़ में देवरा में है। देवरा कोल माइन दुनिया का 2nd लार्जेस्ट बिगेस्ट कोल माइन भारत में ही। कोल सेक्टर में सबसे पहले अगर
किस संस्था का अगर बात करना है तो कोल इंडिया लिमिटेड का बात करना पड़ेगा। कोल इंडिया इस साल 50 वर्ष गोल्डन जुबली मना रही है। कोल इंडिया की सब्सिडरीज भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, उसका लगभग 53 स्थापना करके 53 ईयर्स पूरा हो चुकी है। कोल इंडिया दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन का गवर्नमेंट का कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर में होगा मगर गवर्नमेंट कंपनीज हर देश का अगर कंपेयर किए तो कोल इंडिया इज अ लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन करते हैं और CIL मार्केट कैपिटलाइजेशन में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। भारत की ग्रोथ में कोल सेक्टर का 50 साल से ज़्यादा योगदान है CIL का। और कोल पावर में यूज होता है। स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, पेपर, टेक्सटाइल, हेवी इंडस्ट्रीज, इस सेक्टर में कोल एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी है। ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में कोल का शेयर 55% है। जैसा अभी सेक्रेटरी जी बताया, कोल आधारित थर्मल पावर जनरेशन में भारत में 72% पावर प्रोडक्शन कोल के द्वारा ही आज देश में जनरेशन हो रही है। आने वाले कई दशक, कई डिकेड्स तक भी एनर्जी सेक्टर में कोल एक मेन फ्यूल रहेगा। इसीलिए हम कोल को बताते हैं, हम कोल नहीं बोलते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। जो कुकिंग कोल है इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंस हमारे लिए, देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, देश को उजाला देने के लिए कोल मेन सोर्स है। कोल के बिना ना पावर जनरेशन नहीं हो सकता है। कोल के बिना सेलफोन चार्जिंग से लेकर एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन कोल। आज 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आने के बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देश में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है सेक्टर का, वैसे कोल सेक्टर में भी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाए गए हैं। फंडामेंटल रिफॉर्म्स भी कोल सेक्टर में लाए गए हैं। नॉमिनेशन बेसिस से, अलॉटमेंट बेसिस से जो कोल ब्लॉक्स देने का सिस्टम था उसको खत्म करके ट्रांसपेरेंसी के साथ कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन करना और कमर्शियल कोल माइनिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, कोल गैसिफिकेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना जैसे प्रोग्रेसिव चेंजेस को कोल सेक्टर में लाए गए हैं। रिफॉर्म्स के कारण आज एफिशिएंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिलियंस बढ़ा है। सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंस बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम मिनिस्ट्री के द्वारा उठाए गए हैं। इन सब मेजर हिस्टोरिकल डिसीजन लेना और ट्रांसपेरेंसी के साथ इम्प्लीमेंटेशन के कारण 10 साल से देश में कोल प्रोडक्शन 76% ग्रोथ रेट अचीव किया है। आज 23-24 का
98 million ton coal production, all time record लास्ट ईयर हासिल किया है। अगर वो 2014 अगर कंपेयर किए तो जब वो 566 मिलियन टन प्रोडक्शन था, आज लगभग 998 मिलियन टन 24 में अचीव हुआ है। वैसा ही कमर्शियल कोल माइनिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस के बाद प्राइवेट पार्टनरशिप का भी बनने के कारण कोल सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ा है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उपयोग करके कोल का प्रोडक्शन भी भारत में बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। कोल मिनिस्ट्री ने अभी तक 10 राउंड्स ओपन एक्शन कोल ब्लॉक्स का पूरा हुआ है। इस 10 राउंड्स में लगभग 113 ब्लॉक्स प्रोसेस हो चुका है। लगभग 100 वेस्टिंग ऑर्डर्स भी दिया गया है। वर्तमान में 11th राउंड एक्शन कंप्लीट होने वाला है और 12th राउंड एक्शन के लिए मिनिस्ट्री के तरफ से पूरा तैयारी प्रिपरेशन चल रही है। कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ हमारे हायर ऑफिसर्स मिनिस्ट्रीज पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ हम मिलके काम करते हैं। एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ लगातार चर्चा करके पर्यावरण के क्लियरेंसेस को स्पीड अप करने के लिए हम ध्यान देते रहते हैं। वैसे ही जो रीजनल चैलेंजेस है, रीजनल चैलेंजेस को एड्रेस करके स्मूथ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ लगातार हम बातचीत करते रहते हैं। कोल का जरूरत को पूरा करने के लिए कोल सप्लाई का और उस पे कोल मिनिस्ट्री अदर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम पूरा ध्यान देते हैं। जैसे अभी भी बताए 2021 के दौरान थर्मल पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 4 दिन का कोल स्टॉक रहता था। इस पे आज कोल मिनिस्ट्री प्रॉपर इनिशिएटिव लेने के बाद इंटर मिनिस्ट्री कमेटी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर गठित करके लगातार इस इंटर मिनिस्ट्रीज के साथ चर्चा करके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने के बाद जो कोल सप्लाई का जो भी इश्यूज था, इस इश्यूज को हल करते हुए आज थर्मल पावर प्लांट्स के पास लगभग 21 डेज का स्टॉक्स, पहला 4 दिन का रहता था 2021 में, अभी 21 डेज का स्टॉक्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर हम स्टॉक रखते हैं हर थर्मल पावर जनरेशन कंपनीज के पास। उसके साथ साथ स्पॉन्ज आयरन हो, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर जैसे अलग अलग नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए भी सप्लाई में भी अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किए तो लगभग 16.64% बढ़ा है। उसके साथ साथ फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी हमारा प्रधानमंत्री जी का बहुत इसके ऊपर बार बार बताते रहते हैं। इसका फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के द्वारा कोल एवैक्यूएशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव आया है। इनिशिएटिव के अंतर्गत 102 FMC फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को द्वारा हम कोल रवाना का टारगेट किया है। अभी तक 102 FMC प्रोजेक्ट्स में 39 प्रोजेक्ट्स
आज काम चल रही है। कई सालों से कोल मिनिस्ट्री ने रेल सी रेल RSR इस नेटवर्क के द्वारा कोल एवेक्यूएशन का काम कर रहा था। इसके लिए रेलवेज के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस काम को रेगुलरली होने का ध्यान दिया है मिनिस्ट्री ने। आज रेलवेज के द्वारा अगर 2022 का ईयर का अगर कंपेयर किए तो कोल एवैक्यूएशन 28 मिलियन टन का 2022 में रवाना होता था। आज 2024 में ऑलमोस्ट रेलवेज के द्वारा 54 मिलियन टन्स का आज ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसके साथ साथ कोल एवैक्यूएशन में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड और कॉस्ट एफिशिएंट लाने के लिए भी मिनिस्ट्री अदर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। कोल ट्रांसपोर्टेशन में रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी जैसे रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के कारण हम सक्सेस हुआ है। वैसे ही जो पावर सेक्टर के जो कोल अलॉटमेंट करते हैं, कोल सप्लाई करते हैं, ये लगातार चलने का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोल ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया के नाम पर एक शक्ति पॉलिसी के द्वारा एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स कोल मिनिस्ट्री ने लाए हैं। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में भी पावर प्लांट्स है, PSUs का पावर प्लांट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पावर प्लांट्स है, उस पावर प्लांट्स को प्रॉपर कोल सप्लाई अलॉटमेंट के द्वारा समय समय पर देने के लिए इसी शक्ति पॉलिसी के द्वारा लगातार हम काम करते हैं। और पब्लिक और प्राइवेट पावर प्लांट्स को नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जैसी सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम कंपनीज भी कोल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का हम लगातार प्रयास करते हैं। पावर प्लांट्स को कोल ट्रांसपोर्टेशन खर्च में जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता है उसमें कम करने के लिए हम रेशनलाइजेशन पॉलिसी लेकर इसके द्वारा कोल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर कम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हम कोल माइंस का कोल लिंकेजेस भी रिफॉर्म्स लाए हैं। इसके द्वारा लगभग 7,000 करोड़ का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर हम लास्ट ईयर कम किया है। इसके साथ कोल इंपोर्ट कम करना, ये भारत के लिए प्रधानमंत्री के विजन के आधार पर भारत आत्मनिर्भर का दृष्टिकोण से एक बड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रयास चल रही हैं। 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार के द्वारा जो रिफॉर्म्स के कारण आज इंपोर्ट में भी कोल इंपोर्ट में भी धीरे धीरे से कम हो रही है। लास्ट ईयर अप्रैल 2024 से लास्ट ईयर नवंबर 2024 तक 8 महीने में कोल इंपोर्ट बहुत कम हुआ है। इंपोर्ट कम होने के कारण इस 10 महीने में लगभग $3.91 बिलियन ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का देश का फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ कोल इंपोर्टेड कम करने के कारण बचत हुआ है। पावर प्लांट्स के ब्लेंडिंग पर्पस के लिए कोल इंपोर्ट हुआ है, उसका भी लगभग पावर प्लांट्स में जो इंपोर्ट कोल यूज करते हैं इसके लिए भी 23.56% कम किया है। हम स्टील सेक्टर में बढ़ते हुए डिमांड को देखते हुए कुकिंग कोल का इंपोर्ट भी हम
डोमेस्टिक बढ़ाते हुए इंपोर्ट कम करने के लिए प्रयास कर रही है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में भी इंपोर्ट्स कम हुआ है, लगभग 13.26%। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में भी इंपोर्ट्स कम करने के लिए हम लगातार प्रयास करके मिनिस्ट्री के द्वारा वो भी कम किया है। और डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसके कारण आज इंपोर्टेड कोल का जो कम रेट हो रहे हैं। आज मिशन कुकिंग कोल जो स्टील में यूज करते हैं वो कुकिंग कोल के द्वारा ही यूज करते हैं। इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी के आदेश पर मिशन कुकिंग कोल के नाम पर एक प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार करके मिशन कुकिंग कोल के नाम पर कुकिंग कोल बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जो आज कुकिंग कोल का डिमांड ज़्यादा है, मगर जो भारत में जो कोल प्रोडक्शन होता है इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है और इसके लिए वाशरीज को डेवलप करना, कुकिंग कोल का प्रोडक्शन भी डेवलप करना, उसके बाद जो इम्पोर्टेड कोल में इसमें मिक्सिंग करके जो आज स्टील प्रोडक्शन में यूज करते हैं, इसका भी ध्यान देते हुए काम शुरू किया है। और उसके साथ साथ हमारा जो कोल सेक्टर में काम करते हैं वर्कर्स, इसका भी हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पर मिनिस्ट्री ने जो वेलफेयर देखते हुए काम कर रही है। माइनिंग सर्वे और टोपोग्राफी एनालिसिस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आधारित इसमें कोल सेक्टर में हम इंट्रोड्यूस किया है। और जो हमारा CMPDI सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सहायता से 5G नेटवर्क के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट हमारा मिनिस्ट्री ने कोल सेक्टर में पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते उपयोग कर रही है। इसके साथ साथ 5G सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी टेस्ट लैब भी शुरुआत किया है। कोल माइंस भी एक्टिविटीज को 5G ड्रोन बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग के द्वारा सर्वेलेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। इसके द्वारा कंटिन्यूअस सर्वेलेंस के द्वारा हमारा वर्कर्स का सिक्योरिटी और सेफ्टी भी पे ध्यान दे रही है। उसके साथ साथ जो इलीगल माइनिंग होते हैं इस पर भी प्रॉपर मॉनिटरिंग हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इलीगल माइनिंग कम करने के लिए, रोकने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोल प्रोडक्शन बढ़ाना, एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हमारी कोल माइनिंग एम्प्लॉयज की सुरक्षा भी हमारा प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस 10 साल में हमारा मिनिस्ट्री के द्वारा सर्वेलेंस मॉनिटरिंग, माइन सेफ्टी रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के कारण एक्सीडेंट्स में भी बहुत कमी हुई है। 2013 के तुलना में 2013 के अगर तुलना में 2023 में जो एक्सीडेंट्स हुआ है 50% से कम हुई है। 2013 में 70 एक्सीडेंट्स होता, अभी 2023 में 32 हुआ है। ऐसा ही हम वर्कर्स का वेलफेयर के विषय पर, उनका परिवारों के विषय पर भी हम लगातार ध्यान देते रहते हैं। और देश में एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी कोल गैसिफिकेशन एक बड़ा एक्टिविटी भारत सरकार ने कोल मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया है। इसके लिए भी
हम 2030 तक 100 मिलियन टन्स का कोल गैसिफिकेशन का टारगेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसके लिए कार्बन एमिशन कम करना, क्लीनर कोल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, लो कार्बन इकोनॉमी दिशा में भारत को आगे बढ़ाने के लिए कोल गैसिफिकेशन एक बड़ा कदम है। इसके लिए रिसेंटली 8,500 करोड़ फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम को भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है। इस स्कीम के अंतर्गत हम कोल गैसिफिकेशन का काम बिल्कुल आगे दिन में बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए PSUs अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में भी प्रोत्साहन करेंगे। इसके साथ साथ कोल मिनिस्ट्री हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ डाइवर्सिफिकेशन को भी प्रमोट कर रही है। सिर्फ हम कोल के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो अब नेट जीरो का सिस्टम आने वाला है, ग्रीन एनर्जी का डिमांड बढ़ रहे हैं, इस दृष्टि में लगाते हुए कोल मिनिस्ट्री ने हमारा PSUs के द्वारा डाइवर्सिफिकेशन का काम भी शुरुआत किया है। फिटेड थर्मल पावर प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स, कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स, क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन जैसे डाइवर्सिटीज पर भाग लेने के लिए भी हमारा PSUs आगे जा रही हैं। नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NCL जो हमारा PSU है कोल मिनिस्ट्री का, यह भारत में 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली भारत सरकार की पहला PSU है हमारा PSU। भारत में सोलर पावर प्रोडक्शन करने वाली PSUs में नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन नंबर 1 है। इस PSU के द्वारा आने वाले 2030 तक हम 10 गीगावाट, 2047 तक 30 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करने का टारगेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिया है। हम विश्वास के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। कोल इंडिया और एक नया PSU काबिल के द्वारा भी विदेशों में भी जो काबिल काम करते हैं, उसमें भी हमारा कोल इंडिया भी जो माइनिंग मिनिस्ट्री का जो PSU है काबिल, उसमें भी पूरा एक्सप्लोरेशन काम के लिए भी हम भागीदार हुआ है। कोल मिनिस्ट्री में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इंडिया टारगेट्स अचीव करने पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं। 2024 जनवरी में शुरू किया जो हमारा सैंपलिंग पौधे लगाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर हम लगभग इस 4.5 years में 2020 से लेके 24 तक 13,233 हेक्टार्स में हम लगभग 3 करोड़ पौधे लगाए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ मां के नाम पर भी हम हमारा 11 कोल माइनिंग एक्टिविटी साइट्स पर 332 लोकेशन पर 10 लाख ट्री प्लांटेशन हम लगाए गए हैं। मिनिस्ट्री के द्वारा ग्रीन इनिशिएटिव इन कोल मिनिस्ट्री और PSUs पूरा जिम्मेदारी के साथ हम निभा रहे हैं। इसमें रिक्लेमेशन एफर्ट्स, इको पार्क्स, रिक्रिएशन पार्क्स, माइन टूरिज्म जैसे डिकोल माइनिंग पर हम इस काम शुरुआत किया है। उसके साथ साथ माइन वाटर लोकल कम्युनिटीज को देने के लिए, इरिगेशन के लिए भी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हमारा मिनिस्ट्री लगातार PSUs के द्वारा काम कर रही है। और कोल मिनिस्ट्री ने जो उस कोल इफेक्टेड एरिया, कोल माइनिंग एरिया,
उस एरिया में रहने वाले लोगों का वेलफेयर का भी हम पूरा ध्यान देते हैं, उसके एजुकेशन के विषय पर, हेल्थ विषय पर और स्किल डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, वुमेन एम्पावरमेंट जैसा इंफ्रा डेवलपमेंट जैसे विषयों पर हमारा मिनिस्ट्री सेपरेट पीएससी में सेल बनाकर इस एक्टिविटी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसा ही अलग अलग थैलेसीमिया जो पेशेंट रहते हैं उससे सभी लोगों को हमारा कोल मिनिस्ट्री के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा हम काम करते हैं। कोल बेरिंग एरियाज में जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं, जो एग्जाम्स के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं। कोल इंडिया में जो कोविड के समय पर जो भी माता पिता का देहांत हुआ है, उस बच्चों को अडॉप्ट करके उनका एजुकेशन विषय पर हम पूरा ध्यान देते हुए हमारा कोल एफेक्टेड एरिया में हम काम करते हैं वैसे लोगों को। उसके साथ साथ हमारा जो कोल एफेक्टेड एरिया में जो पुअर फैमिलीज है, उससे इस एरियाज में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम है, उसी विषय पर भी हमारा मिनिस्ट्री, हमारा पीएससी के द्वारा हम उसका पूरा सहायता करते हैं। वैसा ही हम मोदी जी के नेतृत्व में वो सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल कोल माइनिंग दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम माइन क्लोजर एक्टिविटी पे भी ध्यान दे रही हैं। माइन क्लोजर एक्टिविटी में भी ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसी विषय पर हम ध्यान दे रही हैं। भारत के इतिहास में पहली बार प्रोसीजर के अनुसार साइंटिफिकली माइन क्लोज करने वाली माइंस को फाइनल माइन क्लोजर सर्टिफिकेट्स लास्ट मंथ दिया है। ये आने वाले दिन में 147 माइंस को नियमों के अनुसार क्लोज करने का एक्टिविटीज भी अभी वेरियस स्टेज पर चल रही है। माइन क्लोजर पोर्टल के द्वारा हाई स्टैंडर्ड तरीके से इसी सारी इश्यूज पर हम ध्यान देकर हम काम कर रही हैं और माइनिंग इकोसिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग कदम उठा रहे हैं। उसमें जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करके जो अनवांटेड इंसिडेंट्स माइनिंग एरिया में ना हो, ऐसी अलग अलग काम कर रही है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा भी हम काम करते हैं। जो इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, डोमेस्टिकली डेवलप करने के लिए पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।
PSUs भी, काबिल हो, कोल इंडिया हो, NMDC हो, ऐसी अलग अलग PSUs भी, साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर का जितने भी हमारा एंटरप्रेन्योर्स है, कंपनीज है, उनको भी अलग अलग देशों में जाकर क्योंकि माइनिंग कोल ब्लॉक्स लेना, एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग करना, भारत को लाने के लिए प्रयास कर रही है। क्योंकि आजकल जो एक सेलफोन से लेकर जो स्पेस जाके बैटरी तक जो आज क्रिटिकल मिनरल का जरूरत पड़ती है, इसलिए वो जरूरी है, उसको दो तरफ टू एंगल वो काम करना चाहिए। ये भारत सरकार दृष्टि में है, इसका काम कर रही है। दूसरा विषय है, अभी आप जितने भी लास्ट 2-3 मिनट देखे हैं, जो भी डी कोल माइनिंग होते हैं, उसको पूरा तरह से पूरा फिलिंग करने का, पूरा लेवल करने का, पूरा ग्रीनरी बढ़ाने का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का, फॉरेस्ट डेवलपमेंट करने का पूरा काम चल रहा है। Good afternoon, Shilpa. To answer to your question, for the financial year 2025-26, Power Ministry has already communicated their demand for us, that is at 906 million tons for 25-26. So accordingly, we'll be distributing it amongst our three major coal producing sources, that is Coal India, then our captive and commercial, and third is the Singareni collieries. This is as far as the power demand is concerned. The second part of your question is how far is our production aligned with this? Our production target, there will be no change for 25-26, precisely because apart from the power, we also cater to the industry sector. So industry sector ka whatever is the requirement, as Honorable Minister and Secretary Coal has just highlighted, we have two major sectors for which we supply the coal, that is the power sector and the non-regulated sector. So these coal that will be supplied to the non-regulated sector like cement, your steel industry and all the others, sponge iron and all, that we will be increasing. We have, as you know the statistics now, we have an uptick of 16.64% of the non-regulated sector. We can still go higher up because the requirement of coal is there, the demand of coal is there. So that part is the second part. Now third part is, you are talking about the pitted power plants. As Honorable Minister has just said now, we are also moving a step towards diversification from our own, that instead of producing coal and supplying it to the power, the focus is also here to rationalize the transportation of the coal. So there is no point in carrying the coal from one end of the country to the other end. So the focus is that how best we can make our pitted power plants come up. So in that connection, Coal India is already in the planning. The annual is two power plants coming up, one in Odisha and one in Madhya Pradesh. So we are already in the process of going ahead. The Odisha one is in a still little bit advanced stage, and the MP one will come up. And the third one is our own Neyveli lignite, which has the Talabira power plant in state of Odisha. So that power plant is also our pitted power plant. So once we have a pitted power plants in place, then the question of transportation and all will be rationalized to a large extent. I hope that answers your question. Triple tour the Beluru.